رمضان کریم رمضان کریم رمضان کریم رمضان کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ رمضان کریم کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری۔ ناظرین، آج 22 رمضان المبارک ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت بارے ہے۔ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے کہ آج کے معاشرے میں حقوق اللہ پورے کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہم حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں یا صرف سارا زور ہم نے حقوق اللہ پر رکھا ہوا ہے۔ اور جو لوگ حقوق العباد پورے نہیں کرتے، حقوق العباد میں ناظرین بہت سارے آپ کے اوپر جو رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، آپ کی اولاد ہے، میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سے جو آپ کے تعلقات ہیں، جو رشتہ ہے اس کے آپ کے اوپر حق بنتے ہیں۔ پھر پڑوسیوں کے حقوق ہمارے دین اسلام نے بتائے گئے ہیں، ان تمام حقوق کے بارے میں بات کریں گے، کتنی اہمیت ہمارے دین نے بتائی گئی ہے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے علامہ کرامت عباس حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور جی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ حافظ محمد عمر صاحب اور جواد امجد قادری صاحب ہمیں جوائن کریں۔ نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وصاف احمد حمدانی، آپ کی طرف آئیں گے، کلام آپ سے سننا ہے، لیکن ناظرین موضوع پر بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ کچن کا ذرا جائزہ لے لیتے ہیں، افطار کا مینیو دیکھ لیتے ہیں، پھر موضوع پر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم نایاب۔ وعلیکم السلام۔ نایاب کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک ٹھاک۔ نایاب کیا کھلا رہی ہیں آج افطار میں ہمیں؟ آج افطار میں ہمارے پاس لزانیہ رول اپس ہیں اور میٹھے میں ہمارے پاس کنافہ ہے اور نیوٹیلا شیک ہے جو ہم بنا رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ کو لزانیہ رول اپس کا بتا دوں۔ لزانیہ اوبویسلی سب کو پتہ ہے کہ لزانیہ کس طرح بنتا ہے۔ تو رول اپس یہ ہیں کہ ہم نے لزانیہ ہی کی شیٹ کو بوائل کریں گے، بوائل کر کے اس کو ہم ہاف کٹ کریں گے اور اس کے اندر اسٹفنگ کر کے رول شیپ دے کے سیم ہم اس کے اندر ویسی چیزیں کریں گے اور اس کو ہم بیک کریں گے۔ تھوڑا سا سوس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلی جاتی ہوں۔ ٹمیٹو پیوری میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے ٹمیٹوز کو بلانچ کر کے آپ نے اس کو اسکن اس کی پیل آف کر کے آپ نے اس کی پیوری نکال لینی ہے۔ دین اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سالٹ ایڈ کرنا ہے، ہم نے اس کو پکانا ہے۔ سالٹ ایڈ کرنا ہے حسب ذائقہ 1 to 2 ٹیبل اسپون، پیپریکا ایڈ کرنا ہے 1/2 ٹیبل اسپون، اوریگینو ایڈ کرنا ہے 1 to 2 ٹیبل اسپون، چلی ساس 1 to 2 ٹیبل اسپون، شوگر ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ اس کی جو کھٹاس ہے ٹینگینس کو ہم تھوڑا سا بیلنس آؤٹ کر سکتے۔ 1 to 2 ٹیبل اسپون شوگر آپ ایڈ کریں گے، چلی فلیکس ایڈ کریں گے 1 to 2 ٹیبل اسپون، اوریگینو اس کے اندر ایڈ ہوگا 1 to 2 ٹیبل اسپون۔ دین اس کو پکا کے ہم ایک اپنی لزانیہ ساس بنا لیں گے۔ دین اسی کے اندر ہم منس پھر ایڈ کریں گے، چکن منس منگوایا ہوا ہے اور ہم اپنی لزانیہ ساس تیار کریں گے۔ تو ابھی کے لیے لزانیہ کی شیٹس کو بوائل کرتے ہیں۔ پانی اوبویسلی بوائل ہو چکا ہے، اس کے اندر وہ مطلب تھوڑا سا میں نے سالٹ ایڈ کیا اور آئل یوز کیا ہے ڈالڈا کا ہم نے، اور 1 to 2 ٹیبل اسپون ڈالڈا کا آئل یوز کیا، اور اب ہم اس کو پہلے بوائل کریں گے، دین ہم آگے اپنے پروسیس کی طرف چلیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ تیاریاں اپنی کنٹینیو کریں۔ نایاب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں، جب پروسیجر شروع ہوگا تو پھر ناظرین آپ کو دکھائیں گے بھی کہ کیسے اس کی تیاری جو ہے وہ ہوگی۔ ناظرین موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے اس موضوع پر ہم آغاز گفتگو کر لیں۔ علامہ صاحب بہت سارے لوگ یہ ہم نے کہتے سنا ہے کہ حقوق اللہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ یہ گارنٹی ہمیں ایک تو کس نے دی، اور کیا حقوق اللہ معاف کروانا اتنا آسان ہے؟ اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ بہت اچھا موضوع آپ نے چنا ہے۔ آپ کے ایک سوال میں 3 سوال ہیں۔ حقوق اللہ جو ہے وہ واجبات میں ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ، فروحات دین ہے، اور اللہ کے پاکیزہ حکم پر ہم نے گامزن رہنا ہے۔ حقوق اللہ میں آپ نے سوال کیا نا کہ کیا ادا نہ کریں تو اس کی معافی ہے؟ جی یہ وہ والی بات ہے، بے شک اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لیکن وہ اللہ قہار بھی ہے۔ یس، وہ اللہ قہار۔ بالکل۔ جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحیم وہ ہمارے لیے ہے، رحمان عالمین کے لیے۔ بالکل۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ اب میں نے کبھی زندگی میں مسجد جانا ہی نہ ہو، میرا اپنا دل نہ کرے کہ میں اپنے اللہ کی پاک ذات کو سجدہ کر لوں، اور اسی امید پر جناب علی علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا تاریخی جملہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ توبہ کی امید پر
गुनाह करना भी एक गुनाह बिल्कुल है। बिल्कुल, यानी हम उम्मीद लगा के रखें कि हुकूक अल्लाह तो माफ हाँ, हो हाँ, जाएंगे अल्लाह ने तो मुझे और वो माफ अदा ही कर ना दें। करें, तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसा ठीक नहीं, है। लेकिन अल्लाह की रहमत से भी मायूस होना हमें कुफ्र जी के हाँ, जी नजदीक हाँ। ले जाता है। जी ना अल्लाह की रहमत से मायूस होना है, ना अल्लाह के दिए हुए हुक्म से बगावत करनी है। कोशिश करनी है जितनी हो सके कि उस मेरे पाक अल्लाह के हुकूक अदा तो नहीं हो सकते, बिल्कुल, बिल्कुल, हम तो उसका हक अदा नहीं कर सकते। कोशिश की जा सकती है कि अपने आप को अपने अल्लाह के हुक्म के ठीक मुताबिक, है। अपने आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, सरकार की शरीयत के मुताबिक हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि क़यामत के रोज़ हमें शर्मिंदगी ना उठानी। ठीक है। चलो साहब ये कहिएगा कि ये दोनों जो हुकूक हैं वो एक दूसरे के लाजिम और मलजूम कैसे होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हुकूकुल इबाद अदा करने वाला भी वही शख्स होगा जिसके अंदर खौफ खुदा होगा, जो हुकूक अल्लाह पूरे कर रहा होगा। जो अपने खालिक के हुकूक पूरे नहीं करेगा वो मखलूक के हुकूक कैसे अदा कर सकता है? तो ये दोनों लाजिम और मलजूम कैसे बनते हैं एक दूसरे के लिए? जी अलामा साहब। जी मेरे से सवाल है। जी बहन, हकूकुल्लाह जब अल्लाह ताला का जो हकूकुल्लाह है, अल्लाह का हुक्म, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अतात, हकूकुल इबाद भी अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं। इंसानों के हकूकुल इबाद के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इंसान टोटली इंसान है, उनके हकूक, वो हकूकुल इबाद। बंदे की बात आ गई तो बंदा मतलब ये है कि टोटली, इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी, और हमारे साथ जुड़े, इंसान के साथ जुड़े जितने रिश्ते हैं, माँ बाप, बेटी बेटा और करीबी रिश्तेदार, ये तमाम, ये हकूकुल इबाद है अल्लाह का हुक्म। इसी तरह हकूकुल्लाह भी अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने इस बंदे की तख्लीक तो की, पैदाइश तो की इबादत के लिए, लेकिन साथ इस बंदे के ज़िम्मे ये भी लगाया कि तूने ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है, तेरे साथ जितने जुड़े इंसान होंगे तूने उनके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, ये है हकूकुल इबाद। अब अगर हम इसमें मिसिंग करते हैं, हकूकुल्लाह की अदायगी करते हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात इनकी अदायगी करते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं होता, तो गोया कि हम अल्लाह के हुक्म की नफ़ी कर रहे होते हैं। और अल्लाह के हुक्म की नफ़ी करना, गोया जब अल्लाह के हुक्म की नफ़ी कर रहे हैं तो समझ लें कि हम एक बड़े काज को नुकसान, अल्लाह का जो मेन मुद्दा था इस बंदे की तख्लीक, और इस बंदे की तख्लीक के बाद इंसानियत, बंदगी, वो सारी ख़त्म हो जाती है अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ हकूकुल्लाह की तरफ देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, हकूकुल्लाह की अदायगी भी। अब ये अल्लामा साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, अल्लाह ताला ने इबादत बंदे के ज़िम्मे लगाई, अब ये इग्नोर कर देना कि जी अल्लाह रहीम है, नमाज ना पढ़ें, हम रोज़ा ज़कात हज, जो जितने चीज़ें हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ की गई उनको अदायगी ना करें, और या सिर्फ़ एक तरफ इबादतें फुल हों और दूसरी तरफ हम इंसानियत को नुकसान दे रहे हों, लोगों का माल हड़प कर रहे हों, और इसी तरह जो है वो वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हों, बच्चों की जो परवरिश की जिम्मेदारी है वो पूरा ना अदा कर रहे हों, इन तमाम चीज़ों को हम अवॉइड कर रहे हों, तो इधर भी अगर हम सुस्ती करेंगे तो नुकसान, उधर भी सुस्ती करेंगे तो बहुत ज़रूरी है। है। तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। जवाब साहब ये कहिएगा कि हुकूकुल इबाद में जो हैं वो कौन से हुकूक आते हैं, उसमें क्या सिर्फ रिश्तेदार शामिल हैं, या रोज़मर्रा के मामलात में हम जिनसे इंटरेक्शन करते हैं, जिन लोगों से मुलाकात का सिलसिला रहता है, उन पर भी कोई हमारे फ़र्ज़ या हुकूक जो है वो बनते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हुकूकुल इबाद एक बड़ा ही मुफस्सल टॉपिक है। अगर इसको आप वजाहत में चलेंगे तो जिस तरह के आपने सवाल किया, रिश्तेदारों के हुकूक अलग से निकलते हैं, मज़दूरों के, अगर आप सेठ हैं तो मज़दूरों के हुकूक हैं, अगर आप मालिक हैं नौकरों के हुकूक हैं, आप वालिद हैं औलाद के हुकूक हैं, औलाद हैं माँ बाप के हुकूक हैं। अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ओहदा अता फरमाया है, आपने अपनी राया को देखना है, आप राया में हैं, आपने अपने हुक्मरानों के हुकूक अदा करने हैं। यानी इसकी तफसील में अगर आप जाएंगे तो फिर बड़ी वजाहत है, लेकिन चूँकि वक्त भी शॉर्ट है, मैंने टू द पॉइंट बात करनी है कि आप इतना समझ लें कि बुनियादी तौर पे ना दो चीज़ों को समझाया गया। नंबर एक, अखलाकियात। पहली बात कि आपने अल्लाह के बंदों के साथ, मुसलमानों के साथ, कलमा पढ़ने वालों के साथ क्या सलूक किया, यानी आपने क्या उनके मुश्किल वक्त में आप उनके साथ चले,
مثال ایک بڑی پیاری حدیث پاک میں سناؤں گا، حدیث قدسی ہے، اور میں یہ ماشاءاللہ دونوں اسکالرز بیٹھے ہیں، اس مفہوم کی حدیث میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہوگی، منفرد حدیث ہے۔ جی کریمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قیامت والے دن بندے سے پوچھے گا، کیا میرے بندے جب میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندے سے پوچھ رہا رب کائنات، بندہ کہے گا یا اللہ تو مالک کائنات، تو خالق کائنات، شفا تو دینے والا، یا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میری کیا اوقات میں تیری عیادت کرنے کے لیے آؤں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ جب تیرے پڑوس میں، تیرے رشتہ داروں میں یا تیرے محلے میں فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو اس وقت اس کی عیادت کے لیے کرنے کیوں نہیں؟ صحیح، ٹھیک، یعنی اور اس حد تک بتایا گیا عیادت کی بھی اس قدر اہمیت رکھی گئی ہے۔ عیادت ہے، اس میں تکلیف کو دور کرنا ہے، اس میں کسی پریشانی کو دور کرنا، غریب آپ اس کی مدد کریں، آپ کسی کے گھر کھانا بھجوائیں، ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کی بیٹی کی شادی ہے، اس کی بیٹی کی شادی میں مدد کریں، یعنی بہت ساری تفصیلیں نکلتی ہیں۔ یعنی فرائض کی ادائیگی جو ہے اپنی جگہ ہے، نماز جو ہے ہم پہ 5 وقت فرض کی گئی ہے، لیکن اخلاق جو ہے وہ علامہ صاحب ایسے کہ ہر وقت فرض کیا گیا ہمارے دین نے، اخلاق کی فرض۔ جی اچھا ناظرین، ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپسی پر ہم نعت بھی سنیں گے، بلکہ بھی نعت سن لیتے ہیں۔ بریکس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ملٹی فارم کی جانب سے بہت اچھی آفر رمضان میں آپ کے لیے لگائی گئی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جو آپ کے گھر پہ پرانے میٹریسز موجود ہیں آپ ان کی شاپ پر لے جائیے، اگر وہ میٹریسز پرانے ہو چکے ہیں یا اس طرح سے آرام دہ نہیں رہے، سکون دہ نہیں رہے، تو انہیں وہ میٹریسز واپس کر کے آپ نئے میٹریسز کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور یہ جو آفر ہے آپ کے لیے وہ صرف چاند رات تک محدود ہے، تو آپ اس آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹل چاند رات۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ گفتگو پر بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا آپ کے لیے 25% ایکسٹرا کوریج لے کر آ رہا ہے، اور اس کے تھرو ہمارے ٹرانسمیشن میں 26ویں روزے کو بروز پیر کو ہمارا کمپٹیشن کا انعقاد کروایا جائے گا، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں، آپ کی ویڈیوز بھی ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی اگر جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں اس کمپٹیشن میں، وہ اپنی ویڈیو ہمیں، جو ہمارا گیون نمبر ہے آپ کی اسکرین پر ابھی چل رہا ہوگا، اس پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ کو کال کی جائے گی۔ منگل کی رات تک، اتوار کی رات تک آپ اس پہ ہمیں ویڈیو سینڈ کر سکتے ہیں، پھر پیر کے روز جو ہے ہمارا مقابلہ ہوگا، اور وہ نعتیہ مقابلہ ہوگا۔ جیتنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے انہیں نیلسن پینٹس کی جانب سے بہت سارے قیمتی انعامات بھی دیے جائیں گے۔ ناظرین، موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت بارے ہم بات کریں تو حقوق العباد کا اگر تذکرہ کیا جائے تو اس میں تمام رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی والدین کے حوالے سے اگر بات ہو جائے کہ والدین کے بچوں پر کیا حقوق بنتے ہیں، اور پھر بچوں کے والدین پر کیا بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس سے پہلے ایک فکرہ کہہ رہا ہوں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ میرا روزہ نہ ٹوٹے، کوشش کرتا ہے، ہر روزہ دار کرتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، اتنی بڑی بات ہے۔ حقوق العباد کی سب سے بڑی جو روح ہے نا، وہ ہے کسی کا دل نہ توڑنا، چاہے اس میں والدین، چاہے اس میں بھائی، چاہے اس میں آپ کا دوست ہے۔ والدین کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اللہ کے پاکیزہ خزانے سے وہ نعمتیں ہیں جن کا نعم البدل اس کائنات میں کوئی بھی نہیں، کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، قرآن فرماتا ہے اپنے والدین پہ احسان کرو، جب ان بوڑھے ہو جائیں ان کی آوازوں سے آواز بلند نہ کرو، یہ بات۔ اور آج جس سے آپ پوچھیں جی نماز کیوں پڑھتے ہو جنت میں جانے کے لیے، روزہ کیوں رکھتے ہو جنت میں، یعنی اللہ راضی ہو، تو وہ جنت تو اللہ نے آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ ایک بیٹے کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ اللہ کی جنت وہاں پر موجود ہے، لیکن یہاں جنت سے مراد درجہ عصمت بتایا گیا کہ ماں وہ تمہارے لیے ترجمہ عصمت ہے کہ اگر تم نے ان کی خدمت نہ کی یا ان کا دل توڑا تو تمہاری جنت ہے۔ اور اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ باپ کی کوئی اہمیت نہیں، اگر ماں آپ کی جنت ہے نا تو باپ اس کا دروازہ ہے، اور اصول ہے کہ دروازے سے نکل کر بندہ دروازے سے داخل ہو کے آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ ہے والدین۔ اب والدین کے حقوق جو ہیں اولاد پر وہ کیا ہے؟ کسی کو اچھے اسکول میں داخل کروانا، کالج میں کروانا، ٹھیک ہے، یہ فرض میں شامل ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی تربیت، ماں باپ پہ فرض ہے اپنے بچے کی خوبصورت تربیت کریں، جو اس سے تربیت میں ملے گا نا وہی آگے نسلوں میں منتقل ہوگا۔ جو مائیں جائے نماز پہ بیٹھ کر
मुसल्ले में बैठकर अपने बच्चों को शफ़क़त देंगी और फिर अपने शरई फ़र्ज़ पूरे करेगी, तो यकीन कीजिए वो बच्चा कभी भी ना अपने माँ बाप को शर्मिंदा करवाएगा, ना अपने रहबर को शर्मिंदा करवाएगा वो बच्चा। ठीक है। अच्छा, दूसरा, माँ बाप पर ये फ़र्ज़ है कि देखें, सख्ती से तो कभी बच्चा नहीं मानता, प्यार मोहब्बत से लेके चलना बिल्कुल अपने ऐसे बच्चों हाँ, लेकिन कुछ ऐसी ज़िंदगी में मामलात आते हैं जहाँ आपको सख्ती करना है। अगर आपका बच्चा शरीयत से हट रहा है, शरीयत का बागी हो रहा फिर है, सख्ती का भी हुक्म है। तो वो आपको ठीक सख्ती है, का हुक्म है। ठीक है, सख्ती भी की जा जी सकती है। अच्छा, अल्लामा साहब ये कहिएगा कि बाज़ औक़ात होता यह है कि कुछ वालिदैन समटाइम्स बेजा चीज़ों पे भी प्रेशराइज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हुकूक बच्चों को दीन ने अता किए हैं, मर्ज़ी से शादी का इंतखाब वो कर सकते हैं, लेकिन वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शायद कहीं एलिमेंट होता है, तो वो किस हद तक ठीक है? क्या वो करना जायज़ है? क्या बच्चे वो अपना जायज़ हक़ जो दीन ने उन्हें दिया है वो छोड़ के उन पर फ़र्ज़ है कि वालिदैन के का जो हुक्म है उसको माना जाए? ये बुनियादी हक़ अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया है। ख़ुसूसन वालिदैन जब बच्चों से बग़ैर पूछे किसी मामले के अंदर अगर स्टैंड ले रहे होते हैं तो वहाँ उनका ज़्यादातर अमल दखल उनके तजर्बात होते हैं, ना कि वो बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हों। बहुत कम होता है कि बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हों। मैं अल्लामा साहब ने बड़ी प्यारी बातें की, उन्हीं के साथ एक चीज़ शामिल कर दूँ। माँ के कदमों तले जहाँ जन्नत है वहीं साथ हदीस पाक है, रिज़ल रब्बी रिज़ल वालिदी, वालिद की रज़ा रब की रज़ा है। यानी जो शख्स ये चाहता है कि उसका रब राज़ी हो जाए, उसको अपने वालिद को राज़ी करना होगा। यही एक हदीस साथ कोट करके फिर सवाल की तरफ आऊँगा। एक मौका पर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स मोहब्बत भरी नज़र अपने वालिदैन पर डालता है, उनका एक नज़र डालना हज मकबूल और हज उम्रा के बराबर, मकबूल हज उम्रा के बराबर। यानी आप जो हज उम्रा कर रहे हैं उसकी कबूलियत में शक है, लेकिन मोहब्बत भरी नज़र वालिदैन पर डालने पर प्यारे हबीब ने फरमाया मकबूल हज का सवाब मिलेगा। सही। तो इतना बड़ा मकाम। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। ये एक ताल्लुक़ है वालिदैन का और बच्चों का। इस ताल्लुक़ पर बच्चों को भी सोचना चाहिए, इसी तरह वालिदैन को भी सोचना चाहिए। दोनों साइडों पर अपनी ज़िद को इग्नोर करके जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की ज़ात ने हर इंसान को इख्तियार दी। जैसे जब बच्चा बालिग हो गया, अब वो अपना अच्छा बुरा जानता है, पहचानता है, उसके सामने आप जो है वो तजर्बात रख सकते हैं, उस पर सख्ती नहीं आप कर सकते, बताया जा सकता है, आप ज़िंदगी के तजर्बात रख सकते हैं, आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि दीन ने हक दे दिया तो आपके पास इख्तियार नहीं है। चाहे बेशुमार मिसालें मिलती हैं, बेशुमार प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ फातिमा जो बेटी थी, प्यारी बेटी, उनसे जो है जाके बयान किया और पूछा, उनसे मशवरा लिया। और तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशवरा लेना गोया के लिए हमारे लिए मशअले राह है कि हम उसी के मुताबिक हम जो है अपनी ज़िंदगी गुजारें। अच्छा जवाद साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं आजकल, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चे जो है गैजेट्स में ज़्यादा टाइम अपना मसरूफ़ कर रहे होते हैं। नमाज, रोज़ा, तालीम, इस हवाले से पूरी तवज्जो उनकी होगी, लेकिन माँ बाप के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, माँ बाप के पास चंद घड़ियाँ नहीं बैठते। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहा गया है और कैसे उन्हें बेहतर किया जा सकता है? देखें जी, सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा। हमारे बुज़ुर्ग ये बात कहा करते थे कि आज कल भी अगर माँ बाप चाहें ना तो उनकी औलाद ही अल्लाह के वली पैदा हो सकती हैं, माँ बाप अगर चाहें तो। वो कैसे? अब मुझे बताएं कि ये जो बच्चे आजकल गैजेट्स में, आप जैसे मिसाल आपने कहा फॉर एग्जांपल मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया जाता है कि जी आप ये मोबाइल में देखता रहेगा, कार्टून्स देखता रहेगा, टाइम ज़ाया करता रहेगा, रील्स देखता रहेगा, हम अपना काम करती रहेंगी। माएँ अक्सर करती हैं, बाप के पास टाइम नहीं होता, बाप सारा दिन बाहर होता है। तो बेसिकली बच्चा इन चीज़ों में अपने बचपन को गुजारता है, और ये बच्चा आप बखूबी जानती हैं बच्चा अपना बचपन ज़ाया कर रहा है, अपने वो हसीन लम्हात जो खेल कूद के थे वो सब ज़ाया कर रहा है। और उसकी वजह माँ बाप की अदम तवज्जो, अपने बच्चों पर सबसे पहले तवज्जो दें। अगर हम किसी के बच्चों के पर, हमारा ना एक अजीबोगरीब माहौल पता क्या है, हमने गाहे ना गाहे अपने बच्चों को खुद से ही दूर किया। ये मैं बेस पे बात कर रहा हूँ, ये मैं बेस पे भी बात कर रहा हूँ। हुकूक तो फिर बात की बात है ना, पहले उनको इस लायक तो बनाएं कि आपके साथ चले।
اب مائیں کیا کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر باپ کو ایسے پیش کرتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی جلاد آ جائے گا اور آ کر جو ہے نا وہ بچے کو مارنا شروع کر دے گا. بچے بتاتی ہوں آپ کے والد کو, آپ کے پاپا آئیں گے وہ بتاؤں گی, تو اس طرح کی بات کرتی ہے. بچہ بچپن سے خوف زدہ خوف کا ایلیمنٹ بن جاتا ہے کہ باپ بچپن سے ہی ہے, بالکل صحیح, وہ کہتا ہے بھائی باپ آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ ہمارے اگر آپ اسلاف کی زندگی کو دیکھیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں, صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, انہوں نے اپنی اولادوں کو اپنے قریب کیا تھا. اور میں ایک بات کرنا چاہوں گا, اپنے بچوں کو نا دوست بنائیں. آپ کی بیٹی کو اللہ نہ کرے اگر کوئی چھیڑتا ہے, وہ کسی دوست یا کزن سے بات نہ کرے, اپنے باپ سے بات کرے. وہ ڈسٹنس آپ ماں باپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سب سے پہلے جو بتانے والا ہو وہ پھر ماں باپ ہوں یا بہن بھائی ہوں. اتنا جو ہے وہ فرینڈشپ کا ماحول یا کلیئرٹی کا ماحول رکھنا چاہیے جب ماں باپ کے ساتھ اتنی. ٹھیک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر سے مزید بات کریں گے. پھر کالرز اگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انہیں بھی شامل کر سکتے ہیں. آپ کے کوئی سوالات ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ناظرین بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد آپ کو جو ہے جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. وائلڈ وینچر واٹر پارک جو کہ کراچی میں موجود ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے تعاون سے کمپٹیشن ہم کروا رہے ہیں. روزانہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے. آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات کی صورت میں آئی ہیں. صحیح جواب آپ نے دینا ہے اور وائلڈ وینچر واٹر پارک کراچی کی طرف سے آپ کو مفت ممبرشپس بھی دی جائیں گی. اور وائلڈ وینچر واٹر پارک جو کراچی میں موجود ہے, یہ سنڈیز جو ہے صرف فیملیز کے لیے مختص کیا گیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی نایاب کے ساتھ میں موجود ہوں اور نایاب سے میں جانتی ہوں کہ کیا کیا تیاری افطاری کے حوالے سے مکمل ہو چکی ہے اور کیا کیا ابھی باقی رہ چکا ہے. تو نایاب کیا بن چکا ہے اور ابھی کیا کیا باقی ہے؟ لزانیہ بوائل ہو چکا ہوا ہے. آج ہم نے اس کی سوس بنائی ہے. ہم نے آج وائٹ سوس کے اندر اسپینچ ایڈ کی ہے. منس ریڈی ہو چکا ہے ہمارا, بس ہماری اس کی اب لیئرنگ ہے. اس سے پہلے آپ کو میں کنافہ بنانا سکھا دیتی ہوں, کیونکہ کنافہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ کنافہ کی ڈو ملنا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, بٹ ہم نے آن لائن آج کل اب ہر سپر مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے. تو کنافہ ڈو کے نام سے آپ کے پاس اس طرح کی ہیں جو آپ سیویاں ہیں. اگر یہ آپ کو نہ ملے دین اس کا آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ جو باریک سیویاں ہوتی ہیں جو آلریڈی روسٹڈ ہوتی ہیں وہ آپ بائی کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم نے کیا کیا ہے, ایک پین کے اندر اس کو گریس کر لیا ہے, گھی یا بٹر جس کے ساتھ بھی آپ نے کرنا ہے. اور یہ جو ڈو ہے میں نے اس کو پھیلا لیا ہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ اس کا نا مکسچر ریڈی کرتے ہیں. مکسچر ریڈی کریں, اس میں ہم ڈال رہے ہیں کریم چیز 1 کپ. دین اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں ملک پیک کریم, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایڈ کریں تھوڑی سی شوگر. اچھا, اس کی شوگر کو میں نے ابھی میلٹ ڈاؤن نہیں کرنا, میں اسی کے ساتھ ہی مکس کروں گی اور یہ اسی کے مکسچر کے اندر ہی مکس ہوگی. پھر اس مکسچر کو ہم مکس کریں گے, کیونکہ یہ چیز جب اس کو ہم نے بیک کرنا ہے نا اٹ سیلف اس نے میلٹ ہو جانا. اور اینڈ پہ جو ہم نے شیرہ تیار کیا ہوا ہے, شیرہ جو ہم نے تیار کی ہے, پانی, چینی اور تھوڑا سا لیمن جوس آپ نے تیار, اور اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے کارڈمم پاؤڈر یا الائچی آپ نے ڈال دینی ہے. اور شیرہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہوا ہے, پر یہ ہم اینڈ پہ ڈالیں گے جب یہ بیک ہو جائے گا. تو یہ جو مکسچر ہے یہ ہمارا آلموسٹ دیکھیں آپ اس طرح ریڈی ہے. اور اب ہم اس کو کیا کریں گے, اسی کے اوپر نا اسپریڈ کر دیں گے. تو آپ نے اچھے سے اس کو اسپریڈ کر دینا ہے ایونلی. کچھ لوگ چاہیں تو کنڈینس ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اس کے اندر ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پسند ہے آپ اس میٹھے کے ساتھ جا سکتے ہیں. ہم تھوڑا سا تو وہ ریسیپیز ہیں جو کہ آپ کو فل تیاری کے ساتھ تمام انگریڈینٹس منگوا کے بنانے, لیکن کنور کی ہیلپ آپ کے کنور کی طرف سے یہ ہیلپ ہوئی ہے اسپیشلی ماؤں کے لیے کہ بچے جو روزانہ افطار ٹیبل پہ نئی فرمائشیں کرتے ہیں نا, تو کنور کا جو AI جنریٹڈ ٹول ہے اس کے ذریعے آپ کچن میں جو سامان موجود ہے وہ ایک ہی کلک پر ڈیٹیکٹ کرے گا کہ آپ کے پاس ابھی اویلیبلٹی کیا ہے سامان کی, اور وہ اسی کے تھرو آپ کو ایک ریسیپی بنا کے دے گا. اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے, آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. تو کنور کی طرف سے جو ہے یہ ایک بہترین تحفہ ہے اسپیشلی ماؤں کے لیے, بچوں کے لیے بھی. تو اسے آپ ضرور ٹرائی کریں. اور یہ اسپریڈنگ میری ہم نے ابھی کریم یوز کی ہے وہ بھی ہم نے آلپرس کی ہے. جیسا آپ سب کو پتہ ہے کہ آلپرس کا جو دودھ ہے کتنی پروسیس سے گزر کے آپ تک پہنچایا جاتا ہے, اور یہ خالص دودھ ہوتا ہے. اب اس کے اندر ہم یہ ایڈ کریں گے موزریلا چیز, کیونکہ کنافہ جو ہے موزریلا کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, تو جو اسٹرنگس کنافہ کی نکلتی ہیں وہ چیز کے ساتھ نکلتی ہیں. اور ہم چیز اسی کے اندر اسپریڈ کریں گے. آپ نے موزریلا ہی اس کے لیے لینی, اور کوئی چیز آپ نے یوز نہیں کرنی, کیونکہ باقی جو چیز ہوتی ہیں ان کا فلیور ہوتا ہے. تو موزریلا کا اٹ سیلف فلیور نہیں ہوتا, موزریلا صرف اسٹرنگس دینے کے لیے ہوتی ہے.
तो हम इसको अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। देन हम नट्स ऐड करेंगे। नट्स अप टू यू है, आपने कोई भी नट्स ऐड करने हैं आप डाल सकते हैं इसके ऊपर अपनी पसंद के। पर मोस्टली जो ऑथेंटिक, अगर मैं अरेबिक बात करूँ तो वो अक्सर क्या पिस्ताशियोज़ बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, तो मैं थोड़े से पिस्ताशियोज़ अंदर डालती हूँ, बाकी मैं अपनी टॉपिंग के लिए रखूँगी। ठीक है, वो अच्छे लगेंगे। और थोड़ा सा हम घी के साथ इसकी ना ब्रशिंग करेंगे, ताकि कोई भी चीज़ जो है हमारी ऐसा ना लगे कि पकी नहीं हुई है या धोनी। और इसको आपने जब बेक करना है, आपने जब इसको 180 पे रखना है, ठीक है, जस्ट फॉर 15-25 मिनट। जैसे गोल्डन कलर आ गया, इट मीन्स जो आपकी कुनाफा है वो आपका रेडी है। और इसके साथ साथ देखिए मैंने ब्रशिंग की है। देन मैं जो अब डो है, एक और लेयर ये ऊपर हम इसके ऊपर लगा देंगे और देन हम बेकिंग की तरफ जाएंगे। चलें, इसको बस अब बेकिंग का काम वापस जाएंगे। नायाब, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि हमें किचन में तमाम तर चीज़ें शुरू करने से पहले इस्तेमाल करनी है, वो एक दफ़ा नाज़रीन को अगर हम बता दें। सबसे पहले जब भी हम काम करते हैं किचन में, तो हमेशा हम किसका ख्याल रखते हैं? हाइजीन का ख्याल रखते हैं। और हाइजीन का ख्याल सबसे पहले हाथों की बारी आती है, तो हाथों को हम वॉश करते हैं डिटॉल के साथ, और देन ग्लव्स का इस्तेमाल मैं करती हूँ और फिर अपना काम शुरू करती हूँ। ग्लव्स के बगैर कोई काम नहीं होता और हाथ धोए बगैर भी कोई काम नहीं होता, तो हाइजीन ऑलवेज कम फर्स्ट। ठीक है, ये देखें अब ये लेयर लग गई है। चलें, अब इसको सिर्फ हमारा बेकिंग का प्रोसेस है, सिर्फ आपको कंप्लीट करें नाज़रीन, फिर बाद में हम अपनी ड्रिंक की तरफ भी आएंगे कि ड्रिंक में हमारे पास क्या बन रहा है। हमारा मौजू नाज़रीन आज के हवाले से बड़ा वसी है। अल्लामा साहब, हुकूक अल्लाह, हुकूक लिबाद पर हम बात करें तो ये कहिएगा कि बहन भाइयों के भी बहुत से हुकूक बताए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में होता ही है कि सालों गुजर जाते हैं, भाई एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं, लेकिन इफ्तार की दावतें हो रही हैं, ईद पे जो है पार्टीज़ का अहतमाम होता है, लेकिन सगा भाई सगे भाई को ईद मुबारक का मैसेज नहीं करता, सलाम दुआ लेने के रवादार नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या फरमाया गया दीन में? यकीन कीजिए ये सवाल नहीं, ये अलविया है। बाजार से आप हर चीज़ खरीद सकते हैं, खून के रिश्ते नहीं। बिल्कुल ऐसे है। अल्लाह ने खून के रिश्ते की अहमियत इतनी बयान की है कि आपके भाई आपके माँ बाप की वजह से आपके भाई, आपकी बहनें आपके माँ बाप की वजह से बहन। आज हम छोटी छोटी चीज़ों पर ये कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये कोठी मेरी है, ये तकसीम कर लेते हैं। तकसीम कर लेते किसी में हिम्मत है ना तो बाप का खून तकसीम करके दिखा। याद रखिएगा, दुनिया में मैंने एक लेक्चर में कहा था कि दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है ना वो वफा का है। हाँ, वगरना भाइयों ने जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया, बेटा जनाबे नूह अलैहिस्सलाम को छोड़ के पहाड़ पे चला गया, अबू जहल सारी जिंदगी मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन रहा। तो रिश्ते जफा के नहीं, रिश्ते वफा के होते हैं। और याद रखिए, किसी अजीम बुजुर्ग ने कहा था कि जो दौलत, जो माल बेटियों और बहनों में खर्च किया जाता है वो बढ़ता है, उसमें कभी कमी नहीं आती। बेशक ऐसे है। उसमें कभी कमी नहीं आती। हमने कहते हैं ना फलां आदमी बड़ा आदमी है। जनाब अली अलैहिस्सलाम से पूछा जी, गया जी। मौला बड़ा कौन होता है? कहा जिसकी महफिल में बैठ कर कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। आज हमारी बदनसीबी ये है कि सारी जिंदगी बहन भाई से, भाई बहन से नाराज रहता है, और जब वो दुनिया से चला जाता है ना तो फिर उसकी वो चार पाई हिला हिला के कहती है मुझसे बात कर, और भाई कहता है मेरी बहना मुझे माफ कर दे। मैं कहता हूँ जिंदगी में दिल तोड़कर कब्रों से मुआफ़ी मांगना। अच्छा, ये मुआफ़ी क्या हो सकती है अल्लामा साहब? दीन में इसकी शरई हैसियत क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी का दिल दुखाया और वो दुनिया से चला जाए और आप उसके जनाजे में बैठ के उससे माफ़ी मांग रहे हैं, तो हो सकता है? बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मैं ये समझता हूँ अगर ये सवाल आज के प्रोग्राम में ना होता तो उसका हासिल ना होता। देखिए, आपसे अगर अल्लाह ना करे किसी का कत्ल हो जाता है तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक अदालत दुनिया और फिर दैयत, यानी वारिसों का माफ करना। अगर वारिसों ने माफ कर दिया, दैयत अदा हो गई, या उन्होंने फी सबीलिल्लाह अल्लाह के हुक्म के लिए माफ कर दिया, अब दुनिया की अदालत आपको नहीं पकड़ सकती क्योंकि उन्होंने माफ कर दिया। वो आखिरी अदालत अभी लगनी है, वो लगेगी। या रोक रहा हूँ, अब जज साहब अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि भाई मैंने तुम्हें बरी किया, क्योंकि उसके वो लोग पूछेंगे कि कत्ल तो हमारा, वो आपने कैसे बरी कर दिया। इसी तरह मेरा अल्लाह रहीम है, रहमान है, वो कहता है ठीक है मैं बख्शने वाला हूँ, मैं रहम करने वाला। लेकिन अगर
तू मुजरिम है इंसानियत का, सही है। तू मुजरिम है अपने रिश्तों का, उसने तुझे माफ कर दिया तो मैं भी कर दूंगा। ठीक है, अगर उसने ना नहीं किया तो फिर अल्लाह की भी माफ़ी नहीं जी, हो सकती। जी। ठीक है, अच्छा हाफिज़ साहब ये कहिएगा कि अभी देयत का जिक्र हो रहा था, तो बड़ा आसान दीन ने वाज़े फरमा दिया कि किस तरह ये जो है वो अदा हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो ताकतवर लोग होंगे, ताकतवर तबका होगा, वो प्रेशराइज करेगा, धमकाया जाएगा, उन्हें डराया जाएगा कि वो मजबूर हो जाएं कि वो देयत जो है वो देने के ऊपर राज़ी हो जाएं। तो उसकी क्या शरई हैसियत है और क्या कहता है दीन? बहन देखें, अगर इंसान सोचे ये है दुनिया, एक अल्लाह की अदालत लगनी है जहाँ पे ना ये मनसब होंगे, ना जाहो जलाल होगा, ना ये प्रोटोकॉल होगा, यहाँ वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह का हुक्म होगा। वहाँ फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर किसी की नेकी होगी वो भी वाज़े हो जाएगी, ज़र्रा बराबर बुराई होगी वो भी वाज़े हो जाएगी। दुनिया के अंदर तो हम कर सकते हैं भी अच्छा वकील, अदालतों के अंदर केसेस चलते हैं, हम जो है पाए का वकील ढूंढते हैं कि जो जज के जिसका रोब जज के ऊपर पड़ जाए, या जज को ख़रीदने की कोशिश करते हैं। हमारी पाकिस्तान की अदालतों में अक्सर ये चल रहा है सिलसिला। लेकिन एक अदालत अल्लाह की लगनी है जहाँ ना ये जजेस का बिकना होगा, ना वो मायानाज वकील जो करोड़ों की फीसें लेकर जो है वो अगले को ये तसल्ली देते हैं कि आपका केस मैं जीत कर दिखाऊंगा, वहाँ इस तरह का सीन नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में हक होगा और जो है जो बातिल होगा वो बातिल होगा। जिस बंदे ने किसी के साथ ज़र्रा बराबर ज़्यादती की होगी, हकूकुल इबाद, असल हकूकुल इबाद का मुद्दा यही है, उससे पूछा जाएगा हाँ भाई बता तू माफ़ कर सकते? प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, एक मौका फरमाया, साहबा से पूछा जानते हो मुफलिस कौन? जवाब दिया जी आप बताएं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन एक शख्स ऐसा आएगा, नमाज रोज़ा हज ज़कात इबादतें रियासतें बहुत ज़्यादा होंगी उसकी, लेकिन वो जब सामने पेश किया जाएगा एक एक करके उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। उसने लोगों के साथ ज्यादतियां की, लोगों का हक उसने अदा नहीं किया उन्हीं ज्यादतियों के बदले उसकी सारी इबादत का भी कोई फायदा और नहीं होगा। एक वक्त आएगा वो खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा एक वक्त अच्छा, ये दुनिया है ना कि जी जी जुल्म 24 घंटे है, अदल सिर्फ 8 घंटे। बिल्कुल ऐसे जुल्म 24 घंटे सही। है और अदल सिर्फ 8 घंटे। तो इंसानियत इसलिए जिंदा होकर मरहूम हो गई है। हाँ, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा जवाद साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि अभी आपने पहले भी जिक्र किया था कि सबके हुकूक बताए गए हैं दीन में। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई कारोबार चलाने वाला शख्स है, कोई ताजिर है बहुत बड़ा, कोई कारोबार कर रहा है, तो जो एम्प्लॉयज़ उसने रखे हैं उसके भी हक बनते हैं। वो लोग जिनको उनकी मेहनत के मुताबिक उजरत ना दी जाए या जितना उनसे काम लिया जाए उतनी तनख्वाह ना दी जाए, काम ज़्यादा लिया जाए, अप्रिशिएट ना किया जाए, हक मारा जाए, तनख्वाहें रोक ली जाएं, उनके हवाले से क्या कहता है दिन? हुकूकुल इबाद में मैंने अर्ज़ किया था कि अगर आप मजदूरी करवा रहे हैं ना, उनके हक़ में भी आपसे सवाल किया जाएगा कि बताओ इनके साथ तुमने बराबरी की है ना, कि इनको इनका हक़ दिया कि ना दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक मज़दूर आया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द शुरफा बड़े बड़े सरदार बैठे थे। अब आपको पता है ऐसी बैठक में ना माड़ा बंदा ज़रा पीछे बैठता है डर डर के कि पता नहीं क्या बनेगा मेरे साथ, छड़ो जी जाके बहने आप पे थोड़ी देर बैठांगे तो उठ के आ जाएंगे। वो झिझकते आया, आकर पीछे बैठ गया। उसने कहा थोड़ी देर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बातें सुनेंगे, ज़ियारत करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम सरदारों के दरमियान बैठे थे, बड़े बड़े लोगों के। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने देखा, करीम आका अलैहिस्सलाम ने उसको पास बुलाया। वो पास आया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नाम पूछा। करीम आका अलैहिस्सलाम ने ये बेतकल्लुफ़ी है, ये बताया ये जा रहा है। ये तरीका क्या था कि बताया ये जाए कि कोई भी मुसलमान ये छोटा नहीं है, अपने काम से नहीं, इस्लाम के अंदर ईमान की जो है ना वो बुनियाद देखिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसका हाथ पकड़ा, देखिए कितना प्यारा अंदाज है। हाथ पकड़े हुज़ूर ने, उसके हाथों को ना हुज़ूर पकड़ के कह रहे हैं यार तुम्हारे हाथ बड़े सख्त है, करते क्या हो? तो ये बेतकल्लुफ़ ही है ना, उसको अपने साथ ज़रा फ्री किया। अब वो अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह मज़दूर हूँ। अच्छा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ इतने सख्त क्यों हैं? अब ने जब उसने ये रवैया देखा ना, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं तो डरते हुए आया था कि बड़ों की महफिलों में मेरा क्या काम, मैं पीछे बैठा था। हुज़ूर इतना प्यार, इतना एहतराम। मेरा कहा ये अमीर लोग हैं, ये हमसे काम लेते हैं, हमें हमारा हक नहीं देते, हमें हमारी उजरत नहीं देते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया कि अमीरों सुनो, आतुल अजीरा अजरहू कबला अयजुफा अरकू,
मजदूर को उसकी मजदूरी उसके पसीने के खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए, और अगर नहीं करता तो फिर रोज़े क़यामत उनकी पकड़ इसका हिसाब है, एक एक रुपए का एक एक पाई का हिसाब है, पैसे कितने जान गए अगे हिसाब देने पैने। ठीक है, हाँ जी, मुख्तसर आप अपने टाइटल में लगाइएगा, मजदूर के हाथ का छाला सूद देने वाले की इबादत के माथे पर पड़े हुए मेहराब से अफजल। क्या बात है। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब, वक्त की कमी का भी सामना है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होता है कि माशरे में सम टाइम्स कुछ ऐसे लोग हैं जो माली हक़ किसी का गज़ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, भाई उसने विरासत में बहन का हक़ नहीं दिया, या किसी ने किसी से कर्ज़ लिया है, वो अदा नहीं कर सका और वो बंदा जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया, क्या वो भी हुकूकुल इबाद में आएगा? और फिर उनकी तौबा तलाफ़ी जो है वो कैसे मुमकिन हो सकती है? अल्लाह को मुझको टाइम कम है, मैं ये समझता हूँ कि हकूक़ का गासिब जो है ना वो डायरेक्ट अल्लाह की अदालत का मुजरिम है, क्योंकि उस पे हाँ एक चीज़ है कि अगर आपके पास नहीं था उसकी माफ़ी है, सही है। जब आपके पास एक और चीज़ है फिर आप उस पर जानबूझ के अदा नहीं करें, बैठे हैं तो फिर वो नहीं, सही, फिर वो नहीं। मैं पहले भी उसमें ये कहा था कि बहनों बेटियों का हक देने से ना आपकी इज्जत भी बढ़ती है, आपके दर्जात भी बढ़ते हैं और आपका दस्तरखान भी बढ़ता है। यही तो बात है सीखने की जो हम नहीं सीखते। अनाओं के घोड़े पे हम बैठे, अक्लें यतीम हो गई, पढ़ने को देखने को हम मुसलमान हैं, अनाएं हमारी फिरौन वाली, ताकत हमारी नमरूद वाली, क्या बात, आमरियत हमारी यजीद वाली। बिल्कुल बिल्कुल ना, अगर आप अल्लाह और उसके रसूल के करीब होना चाहते हैं तो लोगों को हकूक, मुझे जनाब अलैहिस्सलाम का एक फरमान याद आ गया, सरकार फरमाते हैं कि कभी अपनी औरतों को कनीज ना समझना, वरना कनीज के शोहर कहलाओगे। अच्छा, कनीज के शोहर कहलाओगे, और कभी अपने शोहर को गुलाम ना समझना, वरना गुलाम की बीवी कहलाओगे। यानी जो आप जितनी इज्जत देंगे ना वो आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत है, बिल्कुल ऐसे अगर मैं अपनी ज़ौजा को रुसवा करूंगा तो ये उसकी नहीं, ये मेरी बेइज्जती है। अगर मैं इज्जत दूंगा तो ये मेरी इज्जत है। लिहाजा पैगाम बस यही है तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, हाथ उठा के हाथ जोड़ के कि गफलत की नींद से जाग जाएं, वक्त बहुत कम है, अल्लाह जब भी तुम्हें कभी बुला लेगा। यहाँ पर आपको सब कुछ है। छोटा सा वाक्य याद आ गया, बालूल दना, मुख्तसर कीजिएगा अल्लामा साहब, बस, हाँ। एक सेकंड का है। बालूल दना रो रहे थे बाजार में, किसने कहा अच्छा बालूल क्यों रो रहा है? उसने कहा मैं अल्लाह और बंदों की सुलह करवा रहा हूँ। अच्छा, कहते हैं अल्लाह और बंदों की सुलह, क्या मतलब? क्या बना? कहता अल्लाह मानता है बंदे नहीं मानते। अच्छा, दूसरे दिन कब्रिस्तान में बैठ के, आखिरी बात, दूसरे दिन कब्रिस्तान में बैठ के बालूल पे रो रहे थे। अब बंदे ने पूछा भाई आप क्यों रो रहे हो? कहता है अब बाजी पलट गई, वो जो मैं कल सुलह करा रहा था ना अब वो बदल गई। कहा क्या मतलब? क्या उस वक्त अल्लाह मानता था, बंदे नहीं मानते थे, सही है। आज बंदे मानते हैं, अल्लाह नहीं। हाँ, वो वक्त जब हाथ से निकल जाता है फिर गिल्ट और रिग्रेट ही रह जाता है। अच्छा, आप इस टॉपिक के हवाले से अल्लामा साहब क्या मैसेज देंगे? हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों इंसान की ज़िंदगी के अहम जुज़ हैं। इन दोनों का आपस में ऐसा ताल्लुक़ है कि अगर एक को छोड़ें दूसरे को करें, या दूसरे को छोड़ें दूसरे को करें, मतलब हकूकुल्लाह की अदायगी कर रहे हैं, हकूकुल इबाद नहीं कर रहे, हकूकुल इबाद कर रहे हैं, हकूकुल्लाह की गफलत है, तो ज़िंदगी आपकी नाकाम है। आपकी कामयाब ज़िंदगी उसी सूरत में है जब हकूकुल्लाह की अदायगी भी हो रही है और हकूकुल इबाद की अदायगी भी हो रही है। ये दोनों अहम तरीन जुज़ हैं। हकूकुल इबाद भी अल्लाह ने दिए हैं और हकूकुल्लाह भी अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने कहा कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज ज़कात साहिब इस्तिताअत के लिए, और ये जो हकूकुल इबाद है, बंदों के हकूक़ भी अल्लाह ने नाफिज़ किए। तो ये दोनों के तख्लीक करने वाली एक ज़ात वो अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह की ज़ात ये चाहती है कि मेरा बंदा इबादत भी करे वहाँ, और उसकी के साथ ज़िंदगी के अंदर जितने जुड़े रिश्ते हैं उनका जितना हक है वो भी अदा किया जाए। ठीक है नजवाज साहब, ये कहेगा कि आज क्योंकि एनजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, लोगों के लाइफस्टाइल ऐसे हो चुके हैं, तो कहीं का गुस्सा लोग कहीं पे निकाल देते हैं, बेजा गुस्सा कह रहे होते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे हमें किस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, कैसे मामलात बेहतर हो सकते हैं, मुख्तसर बस बताइएगा, क्या मैसेज देंगे? बस ये बात अगर हम जहन में रख लें कि मैं जो भी मुंह से अल्फाज निकालूंगा या जो भी मैं अपना रिएक्शन करूंगा, फॉर एग्जांपल फ्रस्ट्रेशन है,
غصہ نکال دیا, بے عزتی کر دی, ڈانٹ دیا, مار دیا, پیٹ دیا, 4 بندوں میں اس کا مذاق اڑا دیا. ہاں یہ بندہ اگر ذہن میں رکھے نا کہ میں نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے تو بندہ سنبھل جائے گا. صحیح. ایک مثال دوں گا صرف. ایک مائی تھی نا, تو وہ اس کے پاس ایک گائے تھی, گائے کا دودھ دھویا کرتی تھی, پیا کرتی تھی. ایک بادشاہ تھا, اس کا گزر ہوا وہاں سے. اس کے سپاہیوں نے دیکھا کہ جی گائے بندی ہے, تو سپاہیوں نے آ کر نا اس کی گائے کو پکڑا, ذبح کیا اور گوشت اس کا کھانا شروع ہوا. مائی آئی, مائی نے آ کے پیٹنا شروع کیا کہ یہ میرا اکیلا زندگی کا سہارا تھا, میں اس کا دودھ دھوتی تھی, تو نے یہ کیا کیا. جیسے آج کل نہیں بدماش کہتے جا کر لیا, پھر جو کرنا ہی کر لے, ایسی جو کر سکتے ہو کر لو. انہوں نے بھی کہا کہ تو جانتے نہیں ہم کون ہیں, جا پھر کر لیا, جو کر سکتی ہے کر لے. اب وہ مائی آئی, وہ آگے نا ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی. وہاں پر ایک پل تھا, تو پل کے آپ کو پتہ اس وقت پل چھوٹے ہوتے تھے, تو سپاہی ذرا پیچھے ہٹ جاتے تھے, بادشاہ اکیلا پہلے گزرتا تھا سیفٹی کے پیش نظر, کہ بادشاہ کی سیفٹی خراب نہ ہو. تو بادشاہ گزرا نا, تو مائی پل کے آگے آ کر نا اس نے بادشاہ کا گھوڑا پکڑ لیا. اب بادشاہ کو اس نے صرف اتنی بات کہی کہ بادشاہ صرف اتنا جواب دے دے, یہاں پل پہ حساب دے گا یا پل سراج کے اوپر حساب دینا. پکڑ آپ کی ہونی ہے, پکڑ تیری ہونی ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھ لے, ادھر آسان ہے ادھر مشکل ہے. جواب دے آپ ہیں, اکاؤنٹیبل آپ ہیں, تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ٹرانسمیشن کا وقت بھی اپنے اختتامی مراحل پہ ہے, ہمیں کچن سیگمنٹ بھی کرنا ہے. ناظرین اب کچن سیگمنٹ ہمارا ہے, آپ جانتے ہیں کہ وقت افطار جو ہے نزدیک ہے. میں کچن میں موجود ہوں نایاب کے ساتھ, اور نایاب کی تقریباً تیاریاں ہو چکی ہیں. ڈرنک ایک رہ گئی ہے جو کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ جب میں انہیں جوائن کروں تو ہم ڈرنک بنائیں, اور تاکہ آپ کو بھی بہتر طریقے سے بتایا جا سکے کہ کس پروسیجر کے ساتھ یہ ڈرنک بنتی ہے. تو نایاب یس, پہلے تو میں بتا دوں کہ ہم ساب روسے کے چکن نگٹس ہیں جو فرائی کر رہے ہیں اس وقت, یہ بھی آلموسٹ ہو گئے ہیں. اور جو شیرہ ہے, کیونکہ ہم نے کنافہ میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے بنانا ہے, کنافہ بیک ہو کے نکل آیا ہے, تو شیرہ جو ہے ہمارا ریڈی ہے. یہ میں آپ ہی کے سامنے ڈالوں گی تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کیسے پور کرنا ہے. یہ دیکھیں, یہ شیرہ آپ نے اچھے سے اس کے اوپر پور کر دینا ہے. چلیں, یہ ہمارا کنافہ ریڈی ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی ڈرنک کی طرف. بس چلے میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں, باقی آپ اپنے ڈرنک ایزیلی بنا. چلے, ڈرنک کے لیے ہم آلپرس کا ملک یوز کر رہے ہیں. آلریڈی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے, اور جو ہم یہ بنا رہے ہیں نیوٹیلا شیک بنا رہے ہیں, تو اس کے لیے میں نے نیوٹیلا لی ہے. تو بہت ہی کیلریز والا ویسے شیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کوکنگ چاکلیٹ لی ہے, تاکہ نیوٹیلا بہت سویٹ ہوتی ہے, جو کوکنگ چاکلیٹ اس کے ٹیسٹ کو جو ہے بیلنس کر دیتی ہے. تقریباً 3 to 4 گلاس کے لیے ہے نیوٹیلا, میں نے 3 to 4 ٹیبل اسپون ڈالے ہیں, اور کوکنگ چاکلیٹ جو ہے یہ تقریباً 1 to 2 ٹیبل اسپون ہے. اور اس کے بعد میں آئس ایڈ کروں گی. آلریڈی میٹھا ہے تو اس لیے دیر از نو نیڈ ٹو ایڈ, آپ شوگر ایکسٹرا نہ ڈالیں اس کے اندر. آئس ایڈ کریں گے, اور دین میں اس کو کروں گی بلینڈ. یس, ہمارا نیوٹیلا شیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا. اب میں اگر چاہے نگٹس بھی ہو چکے ہیں ہمارے, آپ چاہیں تو اس کو کیا کر سکتے ہیں, آئس کریم کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں. آپ نے اوپر آئس کریم اسکوپ ڈالنے ہیں, آپ اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. کافی کا بیلنس آپ نے دینا, آپ کافی بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. تو اب میں اس کو پور ڈاؤن کر لوں گی, اور اسی طرح ہم باقی کلاس بھی بنائیں گے. نگٹس ہو گئے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, میں نے ڈش آف کر دی ہیں صرف آپ کے لیے رہا, آپ کا تھوڑا سا کام آسان ہو جائے. چلیں, اب اسی طرح ہم باقی بھی تیار کرتے ہیں اپنا ملک شیک جو نیوٹیلا کا بنا رہے ہیں. بہت ہی آپ یہ کنٹینیو کریں, کیونکہ ہمارے اس سے کچھ کے بچے بھی آ چکے ہیں, آپ انہیں میں جوائن کرتی ہوں, پھر آپ کی ڈرنک کی ریسیپی جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے ناظرین کو بتائیں گے کس طرح سے جو ہے وہ ہماری ڈرنک بن رہی ہے. بالکل, یہ ساتھ ساتھ میں ان کو بتا رہی ہوں کہ آپ پھر سے میں ملک اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں. 3 to 4 گلاس کے لیے ملک ہے جو میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ نیوٹیلا ایڈ کریں گے. نیوٹیلا کیونکہ بہت اٹ سیلف سویٹ ہے, تو کوئی شوگر اس کے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر آئس کریم اسکوپ اسی کے ساتھ ڈال کے اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں, اور مزے کا آئس کریم نیوٹیلا شیک بن جائے گا آپ کا. اور اسی طرح اب میں اس کو پھر سے آئس ایڈ کروں گی, اور اس کو ہم کر لیں گے بلینڈ. سو یس,
Our shake is ready. एंडिंग अब सिर्फ बाकी रह गई है, बाकी ड्रिंक तो हमारी तैयार हो चुकी है, आप इसे ग्लास ऑफ करें। हम ज़रा बच्चों से बात करते हैं जिन्होंने रोज़े भी रखे हैं, और अब क्योंकि आखिरी अशरा है और लड़कियों की तैयारियां वैसे ईद के हवाले से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बच्चों से हम ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? एमन फातिमा, एमन फातिमा। एमन कौन सी क्लास में है? क्लास 2। क्लास 2 में। रोज़ा है एमन का? यस पहला रोज़ा है? यस। माशाल्लाह। अच्छा, तिलावत आती है आपको या नात आती है? नात आती है। नात सुनाएंगी? कौन सी नात आती है? मेरी जानिबी हो एक निगाह करम। चलें, मेरी जानिब भी हो एक निगाह करम। 2 अशार जल्दी सुना दें, माइक पकड़ लें। बिस्मिल्लाह। मेरी जानिब भी हो एक निगाह करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दुहा खातमुल अंबिया, ऐ फसीहुल बयां, ऐ बलीगुल लिसान, ऐ वहीदुज़ ज़मान, मावराए गुमा, आपका नूर है अज़ कराता करा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं इफ्तारी के बाद आपसे पूरी नात सुनूंगी। एमन सुनाएंगी आप? चलें, अभी क्योंकि वक्त कम है नाज़रीन, हमें बाकी बच्चों से भी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीमा है। शिमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक। रोज़ा है आपका? जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारे रोज़े रखे हैं? यस। एक भी स्किप नहीं किया? 2 बस स्किप किए, बाकी सारे। और कौन सी क्लास में आप? 4 क्लास में। कोई तिलावत सुनाएंगी छोटी सी सूरत? कौन सी सूरत सुनाएंगी पहले? सूरत फातिहा। सूरह फातिहा सुना दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? ज़हला। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। रोज़ा ये कैसा गुजरा है? रोज़ा अच्छा गुजरा है। और कौन सी क्लास में आप? केजी 1। KG 1 में। इतनी छोटी सी आपने रोज़ा रखा है? सही वाला रोज़ा है कि चिड़ी रोज़ा है? चिड़ी रोज़ा है। तो इफ्तारी अभी करनी है कि हो गई है? करनी है। अभी करनी है हमारे साथ इफ्तारी। अच्छा, कोई नात सुनाएंगी? तिलावत सुनाएंगी? सुनाऊंगी। नहीं? चले, मैं इफ्तारी के बाद आपसे सुनूंगी। फिर मुझे तो सुना देंगी ना अकेले में? चले, सही है, मैं आपसे बाद में सुनती हूँ। नाज़रीन, ये बच्चे हमारे साथ मौजूद थे जो कि रोज़ा कुशाई के सेगमेंट में हमारे साथ थे, और अभी क्योंकि लाहौर में वक्त इफ्तार बहुत ज़्यादा नज़दीक है, फिर ब्रेक में आपको हम तैयारी भी दिखाएंगे कि कराची में कैसी तैयारियाँ चल रही है। तो छोटे से ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इफ्तार के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इफ्तार के बाद हमारा सेगमेंट है वो हम बात करते हैं हेल्थ के हवाले से, क्योंकि रमज़ान में हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि दवाइयों के थ्रू ही हम किसी मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकें। हर्बल तरीक़ों से भी बचा जा सकता है, और मरज़ के आने से पहले कुछ प्रिकॉशंस ऐसे ली जा सकती हैं कि वो मरज़ आप तक पहुँचे ही ना। तो उस बारे में हम बात करते हैं। आज ही हमें ज्वाइन करें हकीम नियाज़ अहमद दियाल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा हकीम साहब, होता ये है कि आजकल क्योंकि रमज़ान चल रहा है और फिर मौसम भी अब चेंज हो रहा है,
लोग पानी का इस्तेमाल उस तरह से ज़्यादा नहीं कर रहे, ना सहर में पानी का इंटेक है, ना इफ्तारी में उस तरह से पानी का इस्तेमाल होता है, तो बहुत डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं, स्वेल हो जाएगा मुंह, और फिर उसके अलावा स्टमक के भी बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कॉजेज़ क्या हैं और कैसे इससे बच सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा दिन मैदा खाली रहने की वजह से, जैसा कि आपने भी कहा कि हम सहरी में कितना का पानी लेंगे, और एक दूसरा ये है कि हम अफ्तारी में भी ज़्यादा मुरगन चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। हमारा जितना मतलूबा पानी होता है जिसम का वो हम नहीं ले पाते, तो उसके नतीजे में ये होता है कि मैदे के अंदर तेज़ाबी मादे बढ़ जाते हैं और बसा औक़ात कंस्टिपेशन भी हो जाती है, जिसके नतीजे में ये होता है कि वो एक मैदे की जो गर्मी है उसकी वजह से आपके मुंह में छाले बन जाना, आपके मसूड़ों में सूजन आ जाना, वर्म आ जाना। तो इसका बेहतरीन हल तो ये है कि आप अपने जो अपना सहरी में इस तरह की चीज़ें लें, जिस तरह दही है, दही का इस्तेमाल करें, जौ के दलिया का इस्तेमाल करें, ताकि वो जो जिस्म के अंदर जो आपकी एक हिद्दत है वो पैदा ना हो। लेकिन आप अफ्तारी के लिए जिस तरह के मशरूबात लेते हैं, बजाय इसके कि हम ये बाज़ारी मशरूबात लें, आप अगर आपके मुंह में छाले वगैरह हो गए हैं, आपके मुंह में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप आलू बुखारा और अनारदाना और उनाब, ये आप सुबह को 3 दाने आलू बुखारे के ले लें, 6-7 उनाब ले लें और 1 चम्मच अनारदाने का, ये सुबह पानी में भिगो दिया और इस वक्त उसको मल के ज़रा ग्राइंड करके आप उसके साथ अफ्तारी करें। इससे ये हो जाएगा कि आपके मैदे की हिद्दत जो है, जो मैदे में ज़्यादा तेज़ाबी मादे हैं, उनमें कमी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा कॉलर हमारे साथ मौजूद है, औकाड़ा से वकास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वकास, क्या सवाल है आपका? मैडम ये मेरी जो टांगे, मेरी उम्र 46 साल है, मेरी जो टांगे इनकी वेनें है ना वो फूल गई हैं और मुझे ऑपरेट बताया है दोनों टांगों का, तो इसके लिए मैं कोई हल चाहता हूँ, बड़ा परेशान हूँ, तो इसका क्या इलाज है मैडम? और रात को टांगों में दर्द होता है। जी किम साहब। जी असल में टांगों की वेन जो होती हैं, ये आपका जो असाबी निज़ाम होता है उसमें वीकनेस आ जाती है और बाज़ औक़ात टांगों की तरफ जो है वो ऑक्सीजन इंटेक लेवल कम हो जाता है। अच्छा। जब वहाँ तक ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुँचती तो उस वजह से रुकावट भी होती है, फुलावट भी आ जाती है, बाज़ का रगें जो नीली भी पड़ जाती हैं और बाद लोगों के जो होता है पाँव सुन होना शुरू हो जाते हैं। उसका बेहतरीन हल ये है, घरेलू तौर पे आप बेरी के पत्ते लें और उनको पानी में पका लें। ठीक है। जब अच्छे तरीके से वो पक जाएं, उस पानी में आप 2 चम्मच नमक के डालें और जब वो पानी काबिल बर्दाश्त हो जाए तो उस पानी में अपने टांगे और पाँव रखें। अच्छा, भिगो लें पाँव। 10-15 मिनट उस तरह रखें उसको। उसके बाद बाहर निकालें और जिस तरह ये तिलों का तेल है या कोई भी गर्म तेल, जिस तरह ऑलिव ऑयल है, इससे आप हल्का हल्का इसको मसाज कर लें, टांगों पे भी और तलवों पे भी। सही। तो ये इंशाल्लाह 2-4 करने से ये भी हो जाएगा। लेकिन खुरदरी तौर पे आपको कोई ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जिनसे आपके जिस्म में ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ हो, जिस तरह अदरक, अजवाइन, इनका कहवा जो है, अदरक, अजवाइन और सौंफ, इन तीनों चीज़ों का आप रोज़ाना जो 1 कप बना के ना जी, 1 ग्राम अदरक है और आधा ग्राम जो है वो अपना अजवाइन है और आधा ग्राम सौंफ, तीनों को पानी में पकाएं और उसका इस्तेमाल करें, ये बेहतरीन रहेगा। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से बात कर रहा हूँ जी, क्या सवाल है? मेरा छोटा भाई है, खाना नहीं बढ़ रहा है, अच्छा, कद नहीं बढ़ रहा जी छोटे भाई का? अच्छा, कद नहीं बढ़ रहा। देखिए जी, कद के लिए तो सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि आपका जेनेटिकल इशू क्या है। अगर वालिदैन का कद छोटा है तो फिर बच्चों का कद तो नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले तो आप इस चीज़ पे मद्देनजर रखें। अगर इस तरह है तो फिर तो उसकी ख्वाहिश करनी बेकार है, कोशिश करनी भी बेकार है। लेकिन फिर भी अगर वालिदैन का कद ठीक है और बच्चा किसी बीमारी की वजह से, जिस तरह बचपन में जिस तरह ये टाइफाइड का हो जाना या मलेरिया का हो जाना या कोई इस तरह की बीमारी जिससे आपकी हड्डियों की ग्रोथ रुक गई है, तो उसके लिए आप अपने बच्चे के मेटाबॉलिज्म के लिए इस तरह के जो बच्चों के टॉनिक होते हैं आप उसको वो पिलाएं। इसके साथ साथ बच्चे को दूध में दालचीनी पका के रोज़ाना 1 उबला हुआ अंडा, और बच्चे की एज उसने नहीं बताई, अगर तो 15 साल से छोटा बच्चा है तो आधी
ग्राम अदरक का अपना दालचीनी का पाउडर 1 कप दूध में पका के 1 उबला हुआ अंडा उसको खिला के ऊपर से वो पिलाते रहें। अच्छा। और बच्चे को इस तरह की ग़िज़ाएँ जो मेटाबॉलिज्म को ख़राब करती हैं, जिस तरह ये फास्ट फूड है या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, ये ना दी जाए। और जो नेचुरल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, दूध है, चिकन है, मटन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, फ़िश दी जाए, ताकि बच्चे के अंदर जो भी मिनरल्स जो हैं, मैग्नीशियम है या विटामिन कैल्शियम है, उन चीज़ों की जो कमी है वो पूरी होगी तो इंशाल्लाह बच्चे की ग्रोथ जो है वो कुदरती तौर पे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वैसे आजकल बच्चों के भी बड़े मसाले से भी बात करते हैं। अभी एबटाबाद से कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हलीम है जी। क्या सवाल करेंगे? मेरा सवाल ये है कि मुझे हड्डियों की तकलीफ है जी 5-8-9 महीने से। ठीक। उम्र पूछ लें, उम्र क्या है आपकी? उम्र 50 है जी। 58 ईयर्स है। अच्छा, क्या मसला क्या है इनका? हड्डियों में तकलीफ है। हर्नियों का मसला है। अच्छा, पेट में हर्नियों का मसला है। हाँ जी। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो कब्ज़ है उसका इजाला किया जाए, जो पेट के अंदर नाइट्रोजन गैसेस रुकती हैं उनका इजाला किया जाए। और इसके लिए होम रेमेडी के तौर पे आप 100 ग्राम सुंड ले लें, 50 ग्राम सना मक्खी और 25 ग्राम गुलाब के फूल। इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना के रखें। रात को सोते वक्त 1 कप पानी में आधी चम्मच इस पाउडर की पका के ये पीना शुरू कर दें रोज़ाना। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने चावल नहीं खाने। अच्छा। और ऐसी तमाम बादी चीज़ें जो आपके जिस्म में गैस को, रतूबतों को बढ़ाती हैं या जो इस तरह की रुकावट को पैदा करती हैं वो इस्तेमाल ना करें इंशाल्लाह। और वॉक जो है वो डेली कम अज़ कम आध घंटा पौन घंटा वक्त करें। और रोज़ाना जो है गर्म पानी से नहाएं। ठीक है। और आम तो रूटीन में भी गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिनों में वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी बड़ी ज़रूरी है, आपको करनी चाहिए। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त इतने अख्ताम को पहुँचता, आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।